एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, सो बैड न्यूज फ्रॉम केरला। बिल्कुल। Bomb blast at a Jehovah's Witnesses meeting, absolutely terrible. One child is dead, 5 or 6 people are injured, absolutely terrible what has happened. I hope a proper investigation will take place into what has gone on. It has to. And we were just talking about lack of terror events the whole year 2014 से 2004 से लेके 14 तक जिस प्रकार से हो रहा था, और 2014 के बाद जिस प्रकार से बीजेपी का कहना था कि these kind of activities are reduced. They said that what Israel is facing today, we were facing from 2004 to 2014, and after 2014 till date, we had controlled any of kind of terror. There was fear of the government in the hearts of these terror groups. And this is the first time such a thing resurface हो गया है in Kerala. In Kerala. केरला में तो पहली बार हुआ है सर। No, और जिस प्रकार से वहाँ के बीजेपी और यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जिस प्रकार से आरोप लगा दिए, ये तुष्टीकरण का बहुत बड़ा एग्जांपल है। तुष्टीकरण, appeasement politics is giving some terror groups some kind of feeding that they can go on with the terror. But soft corner, तुष्टीकरण जो बार-बार मोदी जी कह रहे हैं कि this has to end. But isn't it too much of a coincidence that on Saturday a Hamas video meeting is allowed? So that some chap, one leader of Hamas, he addresses a whole conference in Kerala through video call, and the very next day this happens. Exactly. And who allowed that meeting? I would love to know. Hamas is a stated designated terrorist organization, और उसके किसी स्पोक्स पर्सन को आपने अलाउ कैसे कर दिया साहब? मतलब ये तो अनहर्ड ऑफ सर। ये क्या है? It is as if giving Hafiz Saeed a forum. कि भाई आकर के हिंदुस्तान में आप अपना This is equivalent to that. It is equivalent to asking Hafiz Saeed to give a live telecast over here. Correct. And the people all cheering and जिस प्रकार से उनके हौसला ये बढ़ा रहा है कि yes, we are with you. It's injustice. Everybody has declared Hamas a terror organization. The most important thing, the country, the desh है हमारा. The government stand is Hamas is a terror organization. Hamas has inflicted terror attacks. And you cannot have a situation where one state agrees with the center and one does not. Of course. Does Kerala disagree with the government of India that Hamas is a terror organization? Do they have the right to disagree? That's what I would love to know. How can they? I mean, you can't. It's a republic. You have to. I mean, the republic, the basic structure of the constitution. Mr. Pinari Vijayan. You can't have a diagonal, an opposite diagonal view of everything, especially of national importance. कैसे हो सकता है? Mr. Pinari Vijayan, the Chief Minister, Communist Chief Minister of Kerala, has a lot to answer for. He can't get away with this. He just can't get away with this. He just can't say one community being targeted. Your government gave permission to a Hamas terrorist to address a congregation in Kerala. Your government did it. And places like Malappuram and Kerala, you need to have intelligence agencies, you need to have, because Musharraf in his book, as we were discussing, In the Line of Fire, he said, we have penetrated the southern organizations within India, the southern part of India. Yes. And Malappuram has been a place where continuous habitual activities against the state takes place. And that is Muslim dominated. I mean, you should be frank about these issues. We need to talk about these issues. We cannot just hide these under the carpet. You can't just shove them under the carpet and hope they'll go away. They won't go away. They won't go away. Because these are the places, it's a breeding ground for terror, active terror networks. Sleeper cells, terror cells. And Jehovah's Witnesses is one of the most peaceful organizations. To have bomb blasts over here is absolutely terrible. I hope the center takes some action against the government in Kerala. I hope it happens. Let's ask Mr. Pradeep Peshkar. Pradeep Peshkar साहब भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं. नमस्कार सर. नमस्कार. How are you sir? How are you? Fine sir, fine. प्रदीप पेशकर साहब आप ये बताएं, मतलब खैर महाराष्ट्र के बारे में बाद में बात करेंगे, सिर्फ 1 या 2 मिनट मैं चाहूँगा आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें. सर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, LDF गवर्नमेंट है केरल में और वो इजाजत दे देते हैं एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संस्थान को, हमस को,
कि आप केरला के अंदर बाय वीडियो कॉल एक मीटिंग एड्रेस करें और वहां के लोग जो हैं जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। ये क्या है? क्या केरल जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है? प्रदीप पेशकर साहब, नहीं, ये हिम्मत कैसे होती है, ये कॉन्फिडेंस का आता कहां से, वो मैं पहले बताना चाहूंगा। आप शुरू से देखिए, जैसे ही हमास ने अटैक किया, बाद में इजराइल ने अटैक किया, और आतंकवाद के खिलाफ हम लोग बिल्कुल एकजुट है और हम इजराइल के साथ है, ऐसा जब मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को कहा और बड़ी मजबूती से कहा, तब मिर्ची लगी कांग्रेस को और उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया। वहां से शुरू होता है। बाद में शशि थरूर, कांग्रेस के बड़े नेता, वो उनके एजिटेशन में शरीक होते हैं। और केरल कहाँ है भारत में है या नहीं, आपने पूछा ना, तो राहुल गांधी को पूछना चाहिए। माननीय राहुल गांधी तो केरला से, वायनाड से तो सांसद है, वो तो वहां गए लड़ने के लिए, क्यों गए? और उनको ये जो उनकी जो राजनीति है ना, वो पूरी राजनीति किसके आधार पर वो कर रहे हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं? वो केरला क्यों गए? वो दूसरी जगह यूपी में उनको नहीं मिली कॉन्स्टिट्यूंसी, महाराष्ट्र में नहीं मिली। उनको एक समाज के वोट चाहिए, और जो भारत के खिलाफ काम करे, उस शांति दूत हम जिसको कहते हैं, उनका वो कॉन्फिडेंस जीतना चाहते हैं। यही तो बात है। इसीलिए तो वो जो पिनाई, क्या नाम है उनका, कम्युनिस्ट, पिनरी विजयन, हाँ पिनरी विजयन, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया इसके वजह से। हमारे साथ में कांग्रेस के बड़े नेता है, हमारे स्टेट से है, तो उनको तो क्या है, इसी प्रकार से हिंदुओं को वहां से भगाना है, हिंदुओं को वहां से डराना है। ये तो काम कब से चल रहा है केरला में। तो लेकिन पेशकर साहब, मेरा ये कहना है, ये तो चलो बात हो गई, चलो ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, कानूनी बात कर रहा हूँ। नहीं, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनन यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है, दिल्ली में जो भारत की सरकार है वो तय करती है कि कौन सा संस्थान आतंकवादी संस्थान है कि नहीं। हामस एक आतंकवादी संस्थान है, ये भारत सरकार ने भी डिक्लेयर किया है, यूरोपियन यूनियन ने भी डिक्लेयर किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी डिक्लेयर किया है। सीधी सादी बात है, और हम लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। केरल की सरकार ने एक आतंकवादी संगठन को इजाजत दी कि बाय वीडियो कॉल आप लोगों को एड्रेस करें, एक मीटिंग में आप भाषण दें। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि हाफिज सईद जो है उसको परमिशन दे दी जाए कि भाई भारत के अंदर बाय वीडियो कॉल आप मीटिंग करिए। 26/11 का जो सबसे बड़ा दोषी है उसको परमिशन दे दी जाए कि तुम जो है भारत के अंदर एक मीटिंग एड्रेस करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार को फौरन केरल सरकार के खिलाफ एकदम एक्शन लेना चाहिए। इनफैक्ट NIA should file a case immediately अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, हम तो ये मांग करेंगे कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उसके अगेंस्ट तात्पर्य ने वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, और केरल गवर्नमेंट के ऊपर ही कार्रवाई होनी जरूरी है। केरल सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, केरल सरकार को बर्खास्त करना चाहिए आतंकवादियों को एक फोरम देने के लिए। ये क्या हुआ सर? अगले दिन जैसे जो खालिस्तानी हैं कनाडा में, उनको कोई परमिशन दे दे कि पंजाब के अंदर आकर के आप एड्रेस करें कोई मीटिंग। ये क्या मतलब हुआ? मतलब आप खुद सोचिए ना सर पेशकर साहब। ये तो दुर्भाग्य है भारत का कि हमारे अंदर ही, आस्तीन के अंदर ही हमने सांप पाल के रखे हैं। तो ये इसके अगेंस्ट जब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट अभी कार्रवाई करेगी, तब इनको पता चलेगा कि किस प्रकार से भारत में रहना चाहिए। आज तक बहुत सारे आंदोलन सह लिए, लेकिन अभी इस प्रकार से अभी सहा नहीं जाएगा। अभी तो पेशकर साहब, मोदी जी हैं, मेरा सिर्फ एक चीज है, हम लोगों ने मोदी जी को क्यों वोट दिया? हम सब ने मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? सीधी सादी बात है प्रदीप जी। बिल्कुल। नेशनल सिक्योरिटी के मसले में नरेंद्र मोदी जी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इसको लेकर के हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। आज एक चीफ मिनिस्टर केरल का परमिशन दे देता है हमस को, अगले दिन वो लश्कर तोयबा को परमिशन दे देगा, उसके अगले दिन ना जाने किस किस को और परमिशन दे देगा। मतलब ये क्या मतलब हुआ?
पेशकर साहब। नहीं, इसी प्रकार से अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे ख्याल से तो वहां पर राष्ट्रपति राजवट लगानी चाहिए, जी। प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, वो बर्खास्त करके, क्योंकि इस प्रकार से अगर सहेंगे तो और दूसरे लोगों की हिम्मत होगी। इस प्रकार से करना उचित नहीं है। और मोदी जी का तो पूरे दुनिया ने माना है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। यस। तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म आप 2014 से देखिए, कहीं बम ब्लास्ट नहीं हुए 2014 अब से। हो गए ना सर, अब हो गए ना केरल में। अब नहीं, अब हो गए, वही तो बोल रहा हूं, तब जी। से लेके मैंने इसीलिए 2014 का जिक्र निकाला। 2014 के बाद आज दिखाई दिया, क्योंकि वहां की सरकार ही निकम्मी है, वहां की सरकार ने ही उनको आने दिया। अभी वो तो बोलते हैं, अभी ऐसा भी है ना, जो जिसने जवाबदारी ली है कोई है, उनका नाम तो अलग है, लेकिन वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जी। ये भी पता चला है। नाम तो हमें पेशकर देखने में साहब अलग दिखता है। सर हाँ, वो अभी देखिए, एक सेकंड लेट मी क्लैरिफाई। हाँ। वो कोई डोमिनिक करके लड़का है सर, वो हाँ। तो मजाकिया बात है। कोई भी शख्स अपने आप बैठ करके ऐसे बॉम्ब नहीं बोलेगा बना कि मैंने किया है। सकता, उसके पीछे संगठन है। ये तो मजाक करने वाली बात है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे एक आदमी Impossible। असेंबल करके मैं अपने पुराने घर में असेंबल किया, वहां से यहाँ पर लेके, अरे ये क्या एक बात आदमी कर का रहे हैं? थोड़ी ये कारनामा हो सकता है। और क्या है पेशकर साहब, ये मल्लपुरम जैसे जगह, मल्लपुरम जैसे जगह हम लोग कारपेट के अंदर इस चीज को वॉश आउट नहीं कर सकते। वहां कम्युनिटी सेंसिटिव है और ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेरर एक्टिविटीज, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर स्लीपर टेरर स्लीपर सेल्स। आपको याद होगा मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ अपने किताब में लिखा था कि हमारे आईएसआई ने ब्रीडिंग ग्राउंड्स बना दिए सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने स्पेशली तमिलनाडु और केरला का जिक्र किया था। मगर आज भी हम जो ऐसे बातों से बात करने पर इतराते कतराते, हम नहीं बात करना चाहते, बोले नहीं छोड़ो इस बात करना जरूरी है। मलप्पुरम जो हुआ कि हमास का टेररिस्ट को एक्टिविटीज को वहां पर लाइव स्क्रीनिंग से भाषण दिया और वहां के लोग उस चीज को सपोर्ट, तालियां बजाना, उस चीज को चेयर अप करना, ये गलत मैसेज जा रहा है। जैसा आपने कहा मोदी जी हार्ड ऑन टेरर, बोले जीरो टॉलरेंस टू टेरर। ये जब चीफ मिनिस्टर थे तभी उनका वो था कि जीरो टॉलरेंस टू दिस काइंड ऑफ टेरर एक्टिविटीज। तो हमको क्या, आपको नहीं लगता कि ऐसे मल्लपुरम जैसे डिस्ट्रिक्ट है जो केरल में, उसके बाद में पूरे खुलेआम बात करना चाहिए कि स्लीपर सेल टेरर सेल्स को कैसे वाइप आउट करना चाहिए, एजेंसीज को सामने लाना। वी नीड टू टॉक अबाउट दिस पेशकर साहब। NIA इज वर्किंग ऑन दैट। NIA के सभी लोग उस पर काम में जुटे हैं और पूरे होम मिनिस्ट्री का उस पर कंट्रोल है। अभी मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में अभी पूरी क्या क्या जानकारी वहां से मिलती है और किस प्रकार से एक्शन लेना उचित है, वो जरूर होगा। We hope sir it 100% happens. We really hope it happens sir. नो, जिस प्रकार से वहां एक तो है आपको पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज सेम वहां पर पिनराई विजयन ने खुलेआम बोला कि बीजेपी वांट्स टू टारगेट सम कम्युनिटी, तो उन्होंने ऑलरेडी तो उनको वही चाहिए। ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम उन्होंने खुद बना दिया कि आप हिंदू मुस्लिम बना दिया इसको टारगेट करना। बट वहां पर हमस के व्यक्ति का वहां पर लाइव भाषण होना, ये इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस पे कोई एक्शन नहीं होगा। NIA का रिपोर्ट आएगा, NIA का पूरी रिपोर्ट आने के बाद में जरूर एक्शन होगा। ये मोदी जी पर पूरे देश का भरोसा है, इस प्रकार की एक्टिविटी बर्दाश्त की नहीं जाएगी। ये तो बिल्कुल हम देखते कि कश्मीर शांत किया, केरल क्या चीज है? कश्मीर शांत किया, केरल क्या चीज है सर? केरल अलग चीज है। केरल केरल अलग चीज है, ये याद रख लें। कश्मीर तो अब दिख रहे हैं सामने आतंकवाद, यहाँ तो छुपे हुए आतंकवाद हैं। जी बिल्कुल। और तो और छोड़िए, मलापुरम में एक और चीज आपको बता दूं, मलापुरम में आपको मालूम है CRPC लागू नहीं होती, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं? वहां पे शरिया लॉ लागू होता है, ये भी बता दूं आपको। आप माने या ना माने, जरा इन्वेस्टिगेट कीजिए इसके बारे में। जो हमारे संवाददाता है वहां पे, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि यहाँ पे सिर्फ इस्लामिक लॉ चलता है और कुछ नहीं चलता। बाय द वे, भारत का कानून नहीं चलता है सर। नहीं, ऐसा है कि वहां पर पूरे लोग मिलकर अगर इसी प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे तो फिर एक्शन तो सरकार जरूर लेगी। लेकिन कब लेगी सर? ये गुंडागर्दी पिछले 50 साल से चल रही है। 50 साल से, 50 के 55 साल से चल रही है। जब से वो मालापुरम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया तब से चल रही है। और तो और छोड़िए, मैं वहां जा चुका हूं, वहां पर जो बस रुकती थी ना सर,
हाँ हाँ मलापुरम स्टेशन के ऊपर, पता नहीं आपको ये मालूम है कि नहीं, अब जाकर के वो बोर्ड हटाया गया है। पिछले 5 साल तक वहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड होता था जिस पर लिखा होता था पाकिस्तान जंक्शन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान जंक्शन लिखा होता था उस पर। सर क्या बात कर रहे हैं सर आप। खैर मैं उम्मीद करता हूं कि लोग जागेंगे, भारत सरकार भी जागेगी कि ये हो क्या रहा है। आई एग्री, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम केरला, crores and crores of them who have gone to the Gulf, who are sending back a lot of foreign exchange over here. We are benefiting from them, but at the same time, there is also an Islamic militancy philosophy which is also coming along with them. So I think we've got a problem on our hands, sir. That's a major problem. पेशकर साहब, बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी ढूंढना है और बहुत जल्दी निकलेगा। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी निकले। ये पुष्कर साहब, कल ही प्रियंका गांधी ने इंडिया को, जो देश का, भारत का स्टैंड जो है यूनाइटेड नेशंस में, भारत एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, भारत ने एब्सटेन किया जो इजराइल पैलेस्टाइन सीज फायर के बारे में। भारत ने कहा कि आपने हमस का जिक्र नहीं किया, हमस इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, आपने हमस का, तो इंडिया एब्सटेन, भारत ने एब्सटेन किया। प्रियंका गांधी ने आलोचना करना शुरू कर दिया, बोले कि महात्मा गांधी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, एंड आई फॉर आई। प्रियंका गांधी का कहना है कि मेक्स द होल वर्ल्ड गो ब्लाइंड। ये गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का स्लोगन था, तो हमें वॉयलेंस को खत्म करना था। तो इंडिया का, जो भारत देश ने जो डिसीजन लिया एब्सटेन का, प्रियंका गांधी कहते हैं रॉन्ग डिसीजन, ये रॉन्ग डिसीजन है। तो आप कैसे पेशकर साहब देख रहे हो इसको, क्या ये सब गतिविधि? प्रियंका जी ने इसका जवाब पहले देना चाहिए कि जो 7 तारीख को हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो आतंकवाद नहीं था? 7 तारीख को जब इजराइल के बेटे बेटियां, बच्चों, महिला, उनके वो साथ बर्बरता की तरह पूरी आज तक नहीं देखी गई, जिंदगी उजाड़ दी 7 तारीख जी। आज तक नहीं देखी गई ऐसी बर्बरता, आज तक नहीं देखी नहीं गई जी। आज तक न देखी हुई ऐसी इस प्रकार की बर्बरता वहां पर हुई, उसके बारे में तो कुछ बोलेंगे नहीं। तब तक तो ये सारे लिबरांडू शांत थे और ये कांग्रेस वाले भी शांत थे। जब हमने कहा, जब हमारे राष्ट्र ने कहा, मोदी जी ने कहा कि वी आर अगेंस्ट टेररिज्म एंड वी आर विथ इजराइल, और बड़ी मजबूती के साथ हम खड़े रहे, तो फिर इनको लगा जवाब देने के बाद, इजराइल ने जवाब देने के बाद लगा कि हाय हल्ला ये अभी करने लगे कि अभी क्या हो गया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के वोट जाएंगे। ये सब उनकी वोट की राजनीति है। राष्ट्र के सामने जब खतरा पैदा होता है तो हम हमारे नेशन के साथ, हमारे सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। इनको ये अभी ये भी भूल गए, अपनी अंधी राजनीति के अंदर ये पूरे अपने राष्ट्र के बारे में, विदेश नीति में ऐसा विरोधी पक्ष या सत्ताधारी पक्ष ऐसा नहीं होता है। इन एनी इवेंट सर, इवन मलापुरम जिसका जिक्र अभी प्रदीप जी ने किया, दैट वाज आल्सो क्रिएटेड बाय द कांग्रेस, बाय द वे। वो मलापुरम जो है, दैट वाज आल्सो क्रिएटेड बाय द कांग्रेस, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट। सर पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के आधार पर एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया, वो भी केरला में। सही है, दुरुस्त बात है, सबसे पहले हुआ। लेकिन सर चलिए, इसमें उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी एक्शन होगा। जरा महाराष्ट्र की तरफ वापस आते हैं। आज की तारीख में सर महाराष्ट्र में आप जानते ही हैं, हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पर आरक्षण को लेकर के, भले वो मराठा हो, कुनबी हो, दंगड़ हो, कोली हो, हर समाज के लोग जो हैं वो बाहर आ गए हैं कि भाई हमें भी आरक्षण चाहिए। और तो और छोड़िए, आज तो खैर 2 लोगों के घर भी जला दिए गए, एक आमदार के घर को जला दिया गया, न जाने और क्या क्या हो रहा है। एनसीपी का जो भवन है वो भी जला दिया गया है। तो सर ये आपको लगता नहीं है इट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल? हर एक को ये चाह रहा है। वैसे बाय द वे, ये मैं अंदर की जो खबर है मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आप इससे एग्री कर पाएंगे या आधिकारिक तौर पर इस पर बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। हर कोई ये चाह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी इसमें व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा दिलचस्पी लें और उन्हीं के हाथ में है, वही कंट्रोल कर सकते हैं अभी, और कोई नहीं कर सकता। सर बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ देवेंद्र जी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने दोपहर में 4 बजे ही स्टेटमेंट दिया। आज एक मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक भी हुई और उसमें भी डिसीजन लिया गया कि जितने भी ये मिले हैं, प्रूफ्स मिले हैं, उनको सर्टिफिकेट देने का काम कल से ही शुरू होगा। जो न्यायमूर्ति शिंदे जी के नेतृत्व में कमेटी स्थापन हुई है, उन्होंने भी उनका अहवाल दिया है कि 11,000 के ऊपर प्रूफ्स मिले हैं, जिनके पास
प्रूफ है उनको कुनबी प्रमाण पत्र देने का काम कल से ही शुरू होगा। और मैं ये बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी मैंने 10 मिनट पहले ही टीवी पे सुना कि जरांगी जी जो उपोषण कर रहे हैं, जो हंगर स्ट्राइक पे है, तो उन्होंने सबको आह्वान किया है कि अभी कोई जलाने का काम, आग का काम नहीं करेगा जी। या हिंसक कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो मुझे अलग डिसीजन लेना पड़ेगा। और उन्होंने अभी एक गिलास पानी पिया भी है, सभी समाज के आग्रह के कारण, उनके इच्छा उन्होंने सम्मान रखते हुए उन्होंने एक गिलास पानी पीने का एग्री किया। लेकिन पेशकर सभी मराठा समाज के पेशकर साहब, वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ हर कोई जरंगे जी की, जरंगे पाटिल जी की शांति से आंदोलन चालू रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला है जी। जो जरंगे पाटिल जी की जो अपील है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हर एक कोई सुने। इसके ऊपर तो शिंदे साहब ने भी कहा था, देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कहा है कि भाई शांति रखिए, हम लोग काम कर रहे हैं ना, आप ट्रस्ट रखिए, आप विश्वास रखिए। लेकिन सर, ये जो प्रूफ का मैटर है, ये प्रूफ का मैटर बड़ा पेचीदा है। ये प्रूफ है कि पेशवा के ज़माने से जो प्रूफ थे और उसके पहले जो जी, तो और निज़ाम के टाइम के जो प्रूफ्स हैं, वो पुरावे निकाले जाएं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें क्या है कि आपको कुनबी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप कुनबी सर्टिफिकेट अगर आपको मिलता है तो रिजर्वेशन आपको मिलती है, तो वहां पर कुनबी समाज जो है वो नाराज है। वो उनका कहना है कि हमें पहले ही इतना कम है, अब उसके अंदर भी आप और ज्यादा लोगों को घुसा रहे हैं, तो बहुत तकलीफ होने वाली है सर उससे। पेशकर साहब प्लीज। नहीं, ऐसा है, प्रूफ इसीलिए चाहिए कि अगर वो है तो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। थोड़ी इसमें मुसीबत ये है कि 50% से ऊपर हम आरक्षण नहीं दे सकते संविधान के हिसाब। फिलहाल जब तक अभी एक्ट जो है उसके अंदर अभी ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, वो आरक्षण का पिटीशन लास्ट गवर्नमेंट जो था, जिसे हम उद्धव ठाकरे या मविया गवर्नमेंट कहते हैं, तो उनको वहाँ पर अच्छी तरह से अपनी बात रख नहीं पाए और वहाँ पर वो रिजेक्ट हो गए। सो हाईकोर्ट में तो सब पूरा जी जान लगाकर देवेंद्र जी ने क्लियर किया था और आरक्षण दिया था और हाईकोर्ट ने माना भी था। आगे सही ढंग से बात नहीं रख पाने की वजह से वो निकल गया। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, जो सच्चाई है वो मैं कह रहा हूँ। और अभी क्यूरेटिव पिटीशन डाली है और क्यूरेटिव पिटीशन में करेक्शन पिटीशन, तो क्यूरेटिव पिटीशन में अभी ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो दाखिल भी करवाई है और वो सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टैंडिंग है। उसका जब सुनवाई होगी और उसका रिजल्ट आएगा तो मुझे बिल्कुल यकीन है, और मैं आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री जी और देवेंद्र जी ने जो कहा है वही दोहराऊंगा कि वहाँ पर जो भी लगेगा, जितने भी स्ट्रांग एडवोकेट्स लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से लगाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को मनाएंगे कि ये बात सच है कि हमारा यहाँ का मराठा समाज काफी मागास है, उनको देने की जरूरत है, और जो भी उसमें पिटीशन में दिए गए प्रूफ्स है वो सारे सत्य है। शरद पवार साहब जिस प्रकार से आलोचना कर रहे हैं सरकार का, शरद पवार साहब हक ही नहीं है इसके ऊपर बोलने का, उनको हक ही नहीं है। आलोचना कर सरकार नहीं सुन रहे, उनके लोग भी उनके नहीं सुन रहे हैं। अभी आज तक उन्होंने मराठा जात के ऊपर राजनीति की, लेकिन कभी आरक्षण दिया नहीं। आज मराठा के मसीहा थे, लेकिन उनके ही लोग उनका अभी नहीं सुनेंगे। ऐसा है, बड़े नेता है, बड़े नेता के बारे में हम लोगों ने बोलना नहीं चाहिए, इस प्रकार का हम पर संस्कार है। लेकिन वो रोज अपनी बाजू बदल देंगे तो ये तो बात नहीं होगी ना। इतना सारा समाज एक मांग करता है तो ये आ जाए क्या मांग? 40 साल तो वो रहे सत्ता में, दिया क्यों नहीं? शरद पवार साहब बोल रहे हैं कि मैं जारंगे पाटिल का पहला दिन शायद आंदोलन का मैं खुद जारंगे पाटिल से मिला, शरद पवार साहब का कहना है। शरद पवार साहब बोले कि मैं उनका वेदना सुना, मैं जो बोल रहे जारंगे पाटिल, उनका जो भी शिकायत था आज वेदना समझी जारंगे जी हंगर स्ट्राइक पे बैठने के बाद वेदना समझी, मराठा समाज की वेदना इनको अभी तक नहीं समझी थी। यही पूछने वाले लोग चाहिए ना। माननीय शरद पवार जी को जरांगे जी ने बोलने के बाद वेदना समझ में आ गई, यही तो दिक्कत है। यही तो हम बोलते हैं कि इतने दिन समझ में नहीं आए, और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हुए और देवेंद्र जी ने वेदना समझी और आरक्षण दिया।
लेकिन ये सच पेशकर बात साहब, है। पेशकर सच साहब, बात एक चीज आदत लगनी चाहिए। एक चीज, छोटी सी चीज, इसके पहले भी काफी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे पास आए, नेता भी आए इसी शो में, और उन सब लोगों ने एक छोटा सा सवाल पूछा है, मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, कि जब भी पवार साहब ऑपोजिशन में होते हैं तो इस प्रकार की प्रोटेस्ट हर जगह पे शुरू हो जाती है महाराष्ट्र में, वैसे नहीं होती है। जब एमबीए की सरकार थी तब एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुई। शरद पवार साहब जब सत्ता में होते हैं तो ऐसी प्रोटेस्ट नहीं होती है, जब वो ऑपोजिशन में होते हैं तो ऐसी प्रोटेस्ट होती है। अब इसके पीछे क्या माजरा है, आपको क्या लगता है कि ये राज क्या है सर? नहीं, अभी अभी देखिए ना, बड़े नेता है, उनका होल्ड है, ये भी हम मानते हैं कि बिल्कुल वो बड़े नेता है, उनको मान सम्मान है, उनकी बातें लोग मानते हैं, लेकिन इस सेंसिटिव विषय पर, ये सब्जेक्ट काफी सेंसिटिव है, युवाओं के आशा आकांक्षाओं से जुड़ा है। महाराष्ट्र में मराठा समाज सबसे ज्यादा है और उनके युवाओं के मन में भ्रम पैदा करना अभी उन्होंने छोड़ देना चाहिए। बेसिक बात यह है कि उन्होंने, देखो, ये अजित पवार गुट जब सत्ता में शामिल हुआ तब उन्होंने पहली सभा कहाँ ली? येवला में जी, छगन भुजबल जी उनके अगेंस्ट में गए और उन्होंने पहली सभा वहां ली। दूसरे कहाँ गए? वो बीड में गए। धनंजय मुंडे जी जब अजित पवार जी के साथ में गए तब माननीय धनंजय मुंडे जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। वो दूसरी तरफ गए नहीं, वो उनका वहाँ जहाँ उनके साथ में लोग हैं उनके पास वो जाएंगे नहीं, वो गए इनके पास और फिर बाद में गए जरांगे जी के यहाँ। फिर युवाओं को भड़काने का काम, मन में भ्रम पैदा करने का काम आज तक जैसा किया वैसा नहीं चलेगा। अभी ऐसा उनको पेशकर भी साहब, समझने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी या महाराष्ट्र में आए थे तो शरद पवार साहब का आलोचना किया था, बोले कि एग्रीकल्चरल मिनिस्टर 2004 से लेके 14 तक था मगर फार्मर्स को रिलीफ नहीं मिला, फार्मर्स को रिलीफ बिल्कुल नहीं मिला। आलोचना किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने शरद पवार जी का। कल ही शरद पवार जी बोल रहे कि मैंने, बोले कि एक्सपोर्ट 7.5 बिलियन था, 42 बिलियन, 43 बिलियन तक, तो बोले कि मैंने काम किया। तो आप कैसे देखते हो पेशकर साहब, एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रधानमंत्री साहब ने आलोचना किया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने किया होगा। तो महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या रुकी क्यों नहीं? कब रुकी? 2014 के बाद थोड़ी कम हुई। मैं ये मानता हूँ कि बड़ी दिक्कत में हमारा किसान बांधव है, लेकिन उनको सही मायने में, सही डायरेक्शन में ले जाने का काम मोदी सरकार ने ही किया। आने के बाद इतने दिन किसानों की क्या हाल रहे ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है। और महाराष्ट्र में किसानों का हाल क्या है? किसानों की आय दुगनी करनी है। जब 2015 में मोदी जी ने ठान लिया तब जाके आज तक की पूरी योजनाएं देखिए। किसान सम्मान निधि अभी डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसा जाता है। पहले क्या होता था? ये तो योजनाएं थी ही नहीं। 1 रुपए में अभी महाराष्ट्र में 1 रुपए में बीमा मिलता है, मतलब इंश्योरेंस मिलता है। पहले कहाँ था? तो ये सारी चीजें हैं। किसानों के ऊपर तो बोलने जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा है कि समाज की मेमोरी बहुत कम होती है, लोगों की मेमोरी कम होती है। इलेक्शन आए तो कुछ भी बोल दो, इस प्रकार से शरद पवार जी बोलते रहते हैं, काम तो कुछ हुआ नहीं। यही मोदी जी ने बोला कि उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की कि शरद पवार जी के हाथों काम का रिजल्ट नहीं मिला। ये बात सच है। नो पेशकर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह जी ने हाल ही में कहा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगा और हम जी जान से राम मंदिर का 550 साल के बाद पुनर्जीवित कर दिया राम मंदिर को। मोदी साहब कह रहा है कि ये अमित शाह जी का कहना है कि मोदी साहब के राज में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत मेहनत किया इसके लिए। उन्होंने आगे जाकर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का निर्माण का विरोध किया है। दैट इज अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। कितना सच्चाई है सर इसमें पेशकर साहब? इसमें सच्चाई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल सामने दिखती चीज है। मैं 2-3 बातें बताऊंगा। पहली बात यह है कि ये हिंदू समाज की जीत है, हमारे अस्मिता की जीत है। प्रभु श्री राम हमारे आस्था है, प्रभु श्री राम हमारे भगवान है, और पूरा हिंदू समाज में जब ठान लिया तब उसका रिजल्ट मिला। एक चीज। दूसरी चीज, कोर्ट में 300-350 साल
ये मुकदमा चलता गया 2014 के बाद ही रिजल्ट लगा ना। ये कैसे हुआ? कोर्ट को भी हिम्मत ये आ गई कि अभी लॉ एंड ऑर्डर ठीक रह सकता है, मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। हमें क्या बोला जाता था, अगर कुछ हुआ तो हमने कश्मीर में सुना ना कि तिरंगा हाथ में पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, सब हाथ जल जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ 370 के समय भी नहीं हुआ, और मोदी जी के शासनकाल में कोर्ट ने उनके ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी दी कि लॉ एंड ऑर्डर में पूरा मोदी गवर्नमेंट पास हुआ। अभी ऐसा है कि गवर्नमेंट रिजल्ट भी लगा, बाद में काम भी शुरू हुआ, बड़े जोर को शोर के साथ में शिलान्यास भी हुआ। अभी 22 तारीख को खुद रामलला वहां पर विराजित हो जाएंगे। तो ये बड़ी भारत का भाग्य खुलने वाला है। ये अभी भारत की जीत है, हिंदू समाज की जीत है, और हमारे भारत के अस्मिता की जीत है। तो ये बात सच्ची है, अमित जी ने जो कहा वो सच है। कांग्रेस कैसे रोड़ा पैदा करती है, पहले तो कोर्ट में डेट ही नहीं आने दे, वहां पर जिस कुछ बहाने वो काम आगे खींचते गए, उसमें कुछ करना नहीं है। दूसरी बात है उन्होंने तो खुद होके राम इमेजिनरी है, वो है क्या नहीं है ये पता नहीं, ये तो एफिडेविट कांग्रेस ने दिया था, वहां से शुरू होती है कहानी सब। अभी ऐसा है कि सब काम बन रहा है, तो अभी लोग ये इस प्रकार से कहेंगे, पूरा हम लोग 300 साल का इतिहास छोड़ो, कांग्रेस के 50 साल का इतिहास देख लीजिए, 70 साल का इतिहास देख लीजिए, उस पर कुछ ना हो, यही काम कांग्रेस ने हमेशा किया है। तो अभी जान दो, पीछे जो गया वो गया, लेकिन सच बात जनता को पता हो गई। यही बात सिर्फ अमित जी ने सबको ध्यान में लाने की कोशिश की है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही रामलला का विराजित होना वहां पर तय हुआ। बोलते थे ना तारीख नहीं बताएंगे, अभी तारीख भी बताया, अभी मंदिर भी बनवाया, और उसका प्रतिष्ठापना भी जोर शोर के साथ में होगी, और हर एक बच्चा के मन में प्रभु राम जी जगाएंगे। ये बताएं सर, चलते चलते महाराष्ट्र में जो अभी आग लगी हुई है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में, ये कब खत्म होगी सर, ये तो बता दें। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खत्म होगी। आज ही जरंगे पाटिल जी ने आह्वान तो किया है, और मुझे लगता है कि उन्होंने सरकार पर विश्वास रखना चाहिए, और शिंदे सरकार और देवेंद्र जी और अजित पवार जी सभी मिलकर उस पर काम कर रहे हैं, और सभी सीरियस है और सीरियसली ये देना चाहते हैं। फिर अगर आधा अधूरा कुछ दिया तो वो समाज के साथ अन्याय होगा, समाज के साथ अन्याय होगा। झूठ बात नहीं करनी है, सच बात करनी है। तो कोर्ट में जो, सुप्रीम कोर्ट में जो टिकेगा वही देने की कोशिश है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे समाज का विश्वास सरकार पर रहेगा, और बहुत जल्दी ही ये खत्म होगा, और शांतिपूर्ण आंदोलन चलना लोकशाही में ठीक है। I hope that happens. I really hope that happens. The violence must stop. जो हिंसात्मक गतिविधियां भी चल रही हैं वो जरा बंद होनी चाहिए। हर जगह पे हर एक ने अपील की है, एकनाथ शिंदे जी ने भी करी है, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी करी है, अजीत दादा पवार ने भी करी है, अब तो जरंगे पाटिल साहब ने भी बोला है कि भाई उल्टे सीधे नाम का काम ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में एक बार फिर शांति की पुनर्स्थापना होगी, क्योंकि एक बार अगर ऐसी आग लगती है तो फिर उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर, फिर वो भड़क जाती है, उसकी it acquires a life of its own, as you know. Right, Peshkar साहब, great pleasure as always talking to you. Thank you very much sir. Thank you. अगली बार जब आप आएंगे आपके शहर के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2-3 विषय हैं आपके शहर के बारे में जिसके बारे में आपसे बात करनी है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। आपने बुलाया, धन्यवाद, नमस्कार सर। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार जब आप आएंगे आपके शहर के बारे में हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। वंदे मातरम। I really and truly hope, Pradeep ji, that this fire which has been let loose in Maharashtra, I hope it ends very frankly. It has to end. दरअसल एक चीज है कि आप बार-बार शरद पवार जी now in leadership and politics you need to be capable of preempting problems and to solve the problem. You can't just say उन्होंने किया, इन्होंने किया, ये क्या ये चीज है, ये क्या चीज है? आप कैसे किसी को दोष दे सकते हो? सरकार आप चला रहे हो, सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आपको लेना है, जो आने आपके इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं? My point is, Pradeep ji, why not? He is in the opposition, and if he is doing it,
What is he expected Get to proof do? and get him in if he's doing it. अरे भाई, what is he expected to do? Is he expected to support you? मतलब क्या हुआ है? क्या राहुल गांधी जी आपको सपोर्ट करेंगे क्या? आप ये अपेक्षा रख सकते हैं कि राहुल गांधी जी आपकी सरकार को सपोर्ट करेंगे? भाई क्यों करेंगे? वो विपक्ष में है ना, विरोधी पक्ष के नेता हैं, क्यों करेंगे? At the moment with us, I think we've got our very old friend from the Congress, Mr. Nizamuddin Rain. निजाम साहब हमारे साथ हैं क्या? निजाम साहब नमस्कार। नमस्कार 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 निजाम साहब, कैसे हैं? निजाम साहब नहीं आ रही सर। अरे कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास। I think we've heard him, we've got him. Can we have him on please? Please don't fool around with anything. Can we have Mr. Nizam back on please? He's there. I can hear his audio. I could just hear his audio. जी I can hear you sir. जी निजाम साहब बोलिए। निजाम साहब आपकी आवाज आ रही थी, बहुत अच्छे तरीके से आ रही थी। आपकी आवाज बहुत अच्छे तरीके से आ रही थी सर। आपको सुनाई दे रहा है सर? निजाम साहब Can't hear it. all right, we'll have him back on Get him, again. get him. Can you please solve the problem and get him back on again? I could hear him, I could see him. So I we don't were really talking know. about this particular government blaming Sharad Pawar ji for all these things. Then you have got your entire intelligence with you. What are you you got doing? the entire Maharashtra police. So with what are you doing? You have got feedback from so many agencies, including the center, who gives you feedback regularly. If all this intelligence is there, you got the government machinery in your hands, प्रशासन आपके हाथ में है, and you're just finding excuses कि वो कर रहे हैं, ये जला रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. I mean, the government should come out of all these things and touch the problem directly and find solutions where it is required, rather than just talk about it. And I mean, But you can't just keep blaming other people. At बिल्कुल. the end of the day, you are in government. yes, you are in the भाई government. सरकार आपकी है ना, सरकार आपकी है। आपने वादा किया, जैसे शरद पवार जी बार बार बोलते हैं, आपने 30 दिन का वादा किया, फिर 40 दिन का वादा किया, आपसे अपना वादा निभाया नहीं गया। अगर आपसे वादा निभाया नहीं गया, उसके लिए क्या शरद पवार जी जिम्मेवार हैं? आप जिम्मेवार है ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल। बट पवार साहब का ये भी कहना कहाँ तक जायज है कि मैं पहले दिन जाके जरंगे पाटिल से मिला और प्रॉब्लम की हाईलाइट, जितना प्रॉब्लम है समझ के लिए आई। दिस नॉट मराठा प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट erupted after Jarange Patil has come into the scene. But it as is also Mr. he was such a responsible. महाराष्ट्र में शरद पवार साहब का जो पकड़ है पूरे महाराष्ट्र में, it would be very presumptive to believe that he doesn't know about this problem that existed. And the other thing is, as far as Mr. For example, our friend from the Uddhav Thackeray Sena, as Mr. Lakshman Hake keeps saying, first of all, you got to figure out, are the Marathas entitled to reservation? Most importantly, are they socially backward? First of all, they have to prove social backwardness. Because under the 102nd Amendment, A, there's a 50% ceiling, and B, you have to prove the fact that you are socially backward, that you have been socially ostracized by the rest of society where you are. Matlab, have Marathas been ostracized? I don't know. Have they? I thought they were the rulers of Maharashtra. And how can the rulers of Maharashtra be ostracized? खुद सोच के बताइए ना प्रदीप जी। बाकी ओबीसी का समझ में आता है, लेकिन मराठा ओबीसी कैसे, मतलब सामाजिक तौर पे किस प्रकार शोषण हुआ है मराठों का? But sir, what they also say, leaders the बहुत ठीक है, political system में all Marathas dominate the entire political scene when leadership is concerned. But these are the cream class. जो मेजॉरिटी मराठास है वो गरीब है, जैसे हमने देखा कि हर जिले में जो भी वारदातें हुए, you can call them economically weaker sections. Yes, you cannot call them socially backward. सोशली बैकवर्ड तो वो होता है किसी के घर में घुसने नहीं दिया हो, गांव से बाहर रखा हो, ये सब वो सोशली बैकवर्ड होता है सर। सामाजिक तौर पे बैकवर्ड तो इसका स्टडी सरकार, ये मराठा प्रॉब्लम आज के उगा हुआ नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि